پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات کا نہیں، اخلاقیات کا ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو حسن نثار صاحب ہیں، ہمارے اینکر پرسن بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور خوب اچھا بولتے ہیں۔ کیونکہ آج کل پاکستان کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں، معاشی تو حالات خراب ہیں ہی، لیکن جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آج جب ٹی وی لگایا، سب سے پہلی جو خبر ہیڈ لائن میں تھی وہ یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ طالبات کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس سے کوئی بھی شعبہ نہیں بچا، مدرسوں تک میں بھی تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اخلاقی پستی کی طرف چلا گیا ہے۔ میں چلتا ہوں، ہمارے کرائم رپورٹر ہیں، اسپیشل رپورٹ دیتے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا کہ یہ آج کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ کراچی میں دندناتے اوباش نوجوان جو ہیں سر عام عورتوں کو، خواتین کو، طالبات کو، بچیوں کو جو ان سے ہراساں کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آج کی جو رپورٹ آئی ہے تو پکڑا کوئی بھی نہیں جاتا، وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں اخلاقیات کا تو جنازہ ہی نکل گیا ہے؟ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سیاسی مداخلت کی جائے گی اور ان کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد کرائم میں اور جو واردات ہیں، جرم میں لازمی اضافہ ہوگا۔ کراچی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ بہت زیادہ وارداتوں کا رجحان پایا جاتا ہے۔ سی پی ایل سی کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ 1200 سے 1300 جو ہے وہ فون سلیکشن کی وارداتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اغوا برائے توان کی 100 سوا 100 کے قریب ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قتل اور اقدام قتل، تو وہ ان کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ اوپر ہے۔ اس کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ سندھ پولیس میں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر کوئی گرفت نہیں۔ آئے روز یہ پتہ لگتا ہے کہ پولیس مقابلہ ہو گیا، آئے روز یہ پتہ لگتا ہے کہ ڈاکوؤں نے فون سیچا ساتھ گولی مار دی۔ یہ چند روز پہلے بھی باپ اور بیٹی جا رہے تھے، ان سے فون چھین کے دونوں کو گولی مار دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات کے پیچھے سب سے بڑے محرکات یہی ہوتا ہے کہ جب وہاں پر خواتین جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں، جو بازار گئی ہوتی ہیں، جو کالجز میں جاتی ہیں، تو ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سے فون چھینا جاتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ زیادہ سیاسی مداخلت ہونے کی وجہ سے جو اس وقت کی جو خواتین ہیں، جو شرفا ہیں، وہ پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراتے کہ ہمیں پکڑ کر ہمارے ساتھ سختی سے پیش آ جائے گا، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ سندھ پولیس جو ہے اس کا گراف پچھلے 5-6 سال سے اچھا نہیں رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو جب بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی سب اچھا ہے۔ ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی حکم ہے کہ جی جو رپورٹس ہیں یہ تو ایک معمول کی کاروائی ہے، جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، پاکستان کا جو معیشت کا ہب ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کرائم کی، جرائم کی اور دوسرے قتل کی، اقدام قتل کی، فون چھیننے کی اور لوگ ایک دوسرے کو ہراساں کرنے کے واقعات میں آئے روز دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی طور پر بہت زیادہ پولیس کے ساتھ مداخلت کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک وجہ تو یہ بتا دی، اور بھی وجوہات تو ہوں گی۔ ہمارا معاشرہ جگہ جگہ سے واقعات بھرے پڑے ہیں، کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے جب پولیس کسی کو پکڑتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے۔ جی نمبر 2، تعلیم کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا۔ غربت کی وجوہات بھی سب سے زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جب ایک شخص کا اخراجات اور گزر بسر نہیں ہوتے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ مجھے ایک دم دولت مل جائے تو میں اس کے ساتھ موج میلے کر سکوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مجبوری میں چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈاکے مارتے ہیں تو ہم سے قتل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم مجبوری میں فائر کر دیتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی پہچان نہ لے۔ تو کم از کم ایک مہنگائی کی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک تعلیم کا، شعور کا بہت کم ہونا، دوسرا کاروبار کا بالکل نہ ہونے کے برابر ہونا۔ پاکستان کی اکنامکس جو ہے اصل 2-2.5-3 سال سے بدحالی کا شکار ہے، ملک میں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، فیکٹریاں جو ہے بند ہونے کے برابر ہے۔ جب آپ کے ملک میں کاروبار نہیں ہوگا، لوگ خوشحال نہیں ہوں گے، تو پھر ان تمام
सर पहलुओं के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो क्राइम की रेशो बढ़ रही है या जो ये हरासा करने का काम है या जो बदअमनी पैदा हो रही है, इसके पीछे यही चंद मुफारकात है कि मुआशी तौर पर जब आपके मुल्क में इस्तेहकाम ना होता वैसे हालात पैदा होते हैं, आपकी तालीम का म्यार कम होता वैसे हालात पैदा होते हैं, या आपके अंदर सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा होता वैसे हालात पैदा होते हैं, या जब जुडिशरी अपना काम ईमानदारी से ना करे तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। आपने दो वजूहात बताई, एक तो बताया सियासी मुदाखलत, दूसरे बताया गुर्बत, बेरोजगारी, मुआशी तौर पे। तीसरा पहलू, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ हमारे उलमा रहते हैं, मदारस हैं, तालीम दी जाती है, मस्जिदों में तालीम दी जाती है, जगह जगह पे मसाजिद कायम है, खुतबे देते हैं। तो ये पहलू किस तरह देखते हैं, मजहबी पहलू? मजहबी लिहाज से बदकिस्मती में पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, और मदरसों के अंदर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा कुफर के फतवे और लोगों को उकसाया जाता है। मदरसों के अंदर लड़कों पर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है, बेरार हुई की जाती है। एक मसलक का मदरसे के लोग दूसरे मसलक के मदरसे को लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, उनको उकसाते हैं। ये जो इस वक्त सारे हालात पैदा हो चुके हैं, ये आज से 20, 25, 30 साल पहले की जो इन लोगों की आबियारी की हुई है, ये अब वही लोग हैं जो सामने आ चुके हैं, क्योंकि मजहबी तौर पे इनके अंदर इस्तेहकाम कोई नहीं है, ना ये मजहब करता है, ना ये मजहब की पूरी तरह तालीम हासिल करते हैं, ना इनको मजहबी तौर पे हर बात का शऊर हासिल है। सिर्फ कुछ एक मखसूस तबके के लोग हैं जो कि पढ़ के जो दरस निज़ामी से पढ़ लेते हैं, वो इमाम लग जाते हैं, फिर वो जिस किस्म की तालीम होती है फिर लोगों को उकसाते हैं, फिर एक दूसरे को मोटिवेट करके एक दूसरे के शिया बरेलवी के साथ बरेलवी, हनफी के साथ हनफी, देवबंदी के साथ, और एक दूसरे को काफिर के खतवे देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये सारे मुआवरत इस तरीके से डील होते हैं। वो अखलाकियात का दरस नहीं देते बल्कि वो नफरत का दरस दे रही हैं। दूसरा एक और मसला है, आजकल पाकिस्तान में भकारी जो से हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और बिलखसूस बदनामी हो रही है पाकिस्तान में, सऊदी अरब में जाके। ये हर रोज़ हम सुनते हैं, आज भी खबर थी कि मुल्तान में चंद भकारियों को उतार दिया, जहाज़ से उतार दिया गया। इससे पहले भी 11 खवातीन, एक बच्चा और 4 मर्द भी उतारे गए। ये आए रोज़ हमारा जो पाकिस्तान में है, भकारी इतने ही हो गए हैं कि बैरून मुल्क में जाके बदनामी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बेकारी तो बहुत ज्यादा हो गई है, गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है। पहले भी बेकारी थे, लेकिन अब जैसे मुल्क की हालात है, मुईशत बिल्कुल डाउन हो चुकी है, कारोबार होने के बिल्कुल नाम ही कोई नहीं है। तो इन सारे मामला के अंदर जो बेकारी है वो बिल्कुल ज्यादा हो गई है। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये इनको पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था कि सड़कों पर खड़े होकर या बाहर पे नहीं मांगना, लेकिन ये फिर भी मांगते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इस सिचुएशन में दोबारा फिर बाहर तक जाना तो वो भी पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। लेकिन बहरहाल हालात और मीशत इस किस्म की होगी कि बंदों के पास अभी मांगने के अलावा और कोई चारा ऐसा नहीं है कि वो ये काम करें कि हम ना मांगे। तो बहरहाल गुर्बत बहुत ज्यादा हो चुकी है मीशत की वजह से, इसलिए बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं, लोग मांगने पे मजबूर है। तो नहीं, जो हमारे हुक्मरान हैं वो बड़े बड़े टूर करते हैं, तो जो अखलाकियात हमारी यहाँ तक गिर चुकी हैं, ये जो एजेंट हैं इनको इनको पकड़ा नहीं जाता कि ये मुल्क की बदनामी का इंतजाम कर रहे हैं एजेंट? बिल्कुल जी, काफी दफा पहले भी एक दफा यूनान के अंदर कश्ती उल्टने का हादसा हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 100 कुछ 12-13 के करीब जो लड़के थे वो पकड़े गए। उसके बाद बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर था कि हम सबको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, ऐसे होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये मिली भगत है पाकिस्तान में, जब कोई पकड़ता, कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी एजेंट्स को किसी को पकड़ते हैं तो उन्हीं के अंदर से जो दूसरे लोग होते हैं वो उसे पैसे लेकर छोड़ देते हैं। तो क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में करप्शन बेइंतहा लेवल के ऊपर फैली हुई है, हर बंदा दूसरा तीसरा शख्स जो है वो करप्शन कर रहा है। तो जब पकड़ने वाला तो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा बंदा वहीं पे उसको पैसे लेके बेगुनाह कर देता है या उसको छोड़ देता है। तो ये लोग फिर वापस आके दोबारा वही काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी एक बंदे को अभी कानून के मुताबिक सजा मिले या सजा दी जाए तो दोबारा कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना या एक दूसरे को बाहर लेके जाना या काम करना, वो फिर एक दफा जरूर सोचेगा कि मुझे इसकी सख्त सजा मिलेगी, तो वो उस चीज से जरूर इस्तराब करेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में किसी शख्स को कानून के मुताबिक आज तक सजा नहीं मिली। एक लंबा केस चलता है, कुछ 6 महीने साल, उसके बाद लोग जो है कुछ अरसे के बाद वो सारी चीज को भूल जाते हैं और वो बंदा फिर पैसे देकर छूट के वापस बाहर आ जाता है। तो क्योंकि आपने कराची की तो क्राइम की शरह बता दी है, तो लाहौर में कैसा क्राइम चल रहा है आजकल, और इसकी बच बचाव का क्या तरीक़ेकार है? वहाँ भी तो बच्चियाँ बाहर जाती हैं, वहाँ भी तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल हैं, वहाँ भी भकारी बहुत होंगे, और कैसा फिर बच बचाव या क्या तरीक़ेकार हुकूमत ने निकाला है या अवाम ने निकाला है? लाहौर
इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से और कुछ लोग जो है जैसे एलीट क्लास है, जो बड़े लोग हैं, उनके जो औलादे हैं वो सारी की सारी जो है शौक में वो ये वारदातें करती हैं। बिल्कुल वारदातों का जो परसेंटेज है वो लाहौर में भी बहुत ज्यादा है। खून छीनना और एक दूसरे को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन कराची की निस्बत कदरे लाहौर का जो ग्राफ है वो जरा कम है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस जो है कुछ अरसे में उसको कवर कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। लेकिन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान लाहौर में जो है क्राइम का ग्राफ कम है या वहां पे क्राइम नहीं होता, बल्कि यहाँ पर भी क्राइम होता है। लेकिन ओवरऑल उसकी यही वजूहत है कि जब मुल्क में मीशत और कारोबार नहीं होगा तो लोग मजबूर होंगे अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कि हम एक दूसरे को लूट लें। तो उसी सिलसिले में एक दूसरे के साथ वारदातें भी करते हैं, कत्ल गारत भी होती है, ज्यादतियां भी होती है, वारदातें। इन सब के पीछे जो मुहर्रिकात है वो ओवरऑल मुल्क की मीशत ही है और तालीम की कमी है और कानून का ना होना है। इन सब वजूहत की वजह से ये सारे जराइम हो रहे हैं। और सियासी मुदाखलत भी है, जो सबसे पहले पहलू आपने उठाया था वो सियासी मुदाखलत है अदारों में। अब आपके पास रिपोर्टें तो आती होंगी दिलचस्प। सबसे पंजाब की बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा सूबा, सबसे अच्छा ज़िला कौन सा है और सबसे बदनाम ज़िला कौन सा है? तो बताइएगा क्या शरह है सबसे ज़्यादा किसी जुर्म की किसी इलाके में? देखिए जुर्म तो सब जगह पे बराबर होता है, लाहौर में भी हो रहा है, जिला में इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं। तो उसमें सिर्फ ये है कि जो लाहौर से हट के जिला है, जैसे फैसलाबाद है जिला, ये फैसलाबाद हो गया, शेखुपुरा हो गया, ये क्राइम के लिहाज से एक दूसरे के करीब ही है। लेकिन हम ये किसी भी जिले को ये नॉमिनेट नहीं कर सकते कि किसी भी जिले में क्राइम की परसेंटेज कम है या वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा बेहतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि लाहौर जो है पंजाब का कैपिटल है, तो यहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो मुसलसल अगर कोई ऐसे मामला होते हैं तो उसको हैंडल कर लेते हैं। जैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, लेकिन वो अंडर सुपरविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको भी डील करती है। इस्लामाबाद फेडरल जो है उनकी अपनी एक पुलिस है, कपड़ा निजाम है, तो उस सिस्टम के तहत भी वो जो है उनका अपना निजाम है, लेकिन वहां पर भी क्राइम होता है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि कम अज कम जो लाहौर है, पंजाब या बाकी इजला की निस्बत जो कैपिटल है इस्लामाबाद का, उसमें जरा परसेंटेज कम है। तो बाकी ओवरऑल हर जगह के ऊपर जो है वो क्राइम होता है। अच्छा, किसी जमाने में जंग यानी चन्योट का इलाका बड़ा बदनाम होता था, अब चन्योट सुनने में है कि जिला बन गया, बल्कि है जिला। तो उसके इलाका इर्द गिर्द बहुत सारी पुरअमन बस्तियां भी हैं, देहाती हैं, देहाती इलाके ज़्यादा हैं, आराम से लोग रहते हैं। तो उस इलाके की कैसी पोजीशन है चन्योट के ज़िला की? चन्योट भी नॉर्मल जी आता है, उसमें ऐसी कोई क्राइम हम ये तो नहीं कह सकते कि मुसलसल उसमें क्राइम हो रहे हैं और ये भी नहीं कह सकते कि मुसलसल क्राइम नहीं होते। लेकिन जो नॉर्मल और मामूली वारदात है, क्राइम है, जमीनों पर कब्जा है, वो छोटे मोटे जो वाकयात हैं वो सब चलते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि जिला जो है चन्योट जो है वो भी उसके करीब जो मसावात करीब को इलाके हैं, तो जो जितना बैकवर्ड इलाका होगा उसमें क्राइम की परसेंटेज थोड़ी कम होगी, जरा बीच में आएगा तो जरा ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये सारा वाकया होते हैं रिपोर्टर रिपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि जो वहाँ पर नुमाइंदगान है, जो रिपोर्टर होते हैं, ये सब उनकी तरफ से जो ओवरऑल रिपोर्ट आती है कि सरगोदा में क्या हो रहा है, लालिया में क्या हो रहा है, चन्योट में क्या हो रहा है, फैसलाबाद में क्या हो रहा है, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर जो नुमाइंदगान है उनकी तरफ से इतनी ज्यादा जो है वो रिपोर्टेड वाकयात नहीं होते। कभी कभार कोई ऐसा जो मर्डर हो गया या कोई डकैती हो गई या कोई गवाह बराए तुफान हो गया, लेकिन बहरहाल जराइम जरूर होते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि लाहौर की जराइम ज़रूर होते हैं, लाहौर की निस्बत कम होते हैं। ये थे हमारे खुसूसी रिपोर्ट देने वाले क्राइम्स रिपोर्टर, जो कि पाकिस्तान के हालात के बारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान का मसला जो है अखलाकियात का है, मुआशियात का है, सियासियत का है। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।